لاہور کے تاجر بھی مہنگی بجلی کے خلاف سڑکوں پر، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ مہنگی بجلی اور بھاری بھرکم بل کسی صورت قبول نہیں۔ ایک ماہ میں 2 سے 3 بار بجلی مہنگی کی گئی ہے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حکومت سے التجا ہے کہ عوام کا سوچے۔ بجلی کے بھاری بھرکم بل عوام پر بجلی بن کر گرے۔ لاہور میں ہال روڈ پر تاجر برادری بھی بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے خلاف بھاری بھرکم بل اٹھائے سڑکوں پر آ گئی۔ مظاہرین نے حکومت سے بجلی کے بلوں میں شامل اضافی ٹیکس اور بجلی کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمت کو کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ 85,000 کا بل آیا، میں نے آنکھوں کا آپریشن کرانا تھا لیکن وہ چھوڑ دیا، بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ غریب آدمی جو ہے، جو بیچارے کے گھر میں 1 پنکھا 2 بلب ہیں، اس کو 10,000 15,000 کا بل آ رہا ہے۔ اس ماہ ہر بندے کی جو مزدور ہے، اس کی جو ریڑھی والا ہے، ان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ بل دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے دور میں عوام کا جینا محال کر دیا گیا۔ انجمن تاجران ہال روڈ کے صدر بابر محمود نے بجلی کے بلوں میں بے جا اضافہ اور ٹیکسز کی بھرمار کو ظلم قرار دیا۔ کہا آج مزدور اور سفید پوش طبقہ فاقہ کشی پر مجبور ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین طارق محمود کے ساتھ عدنان بٹی، GNN لاہور۔ ناظرین، ملک کے دیگر شہروں کی طرح لاہور اور کراچی کے شہری بھی زائد بجلی کے بلز کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ شہریوں کا بڑھتی مہنگائی اور زائد بجلی کے بلوں کے بارے میں شدید شکوے جاری ہیں۔ جی بالکل، اپنے نمائندگان سے بات کریں گے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ معین اظہر ہوں گے اور کراچی سے راشد صدیق ہوں گے۔ لاہور کی جانب رخ کریں گے۔ معین، بتائیے گا کیا کہنا ہے لوگوں کا اور کتنا بجلی کے بلز آئے ہیں اور احتجاج کہاں کہاں کیا جا رہا ہے؟ جی، میں اس وقت لاہور ٹاؤن شپ کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں پہ یہ ایک بہت بڑی چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ مشتمل ایک مارکیٹ ہے۔ یہاں پہ مارکیٹ کے جو تاجر ہیں وہ بجلی کے بلوں کے پہ اضافے کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہیں، اور میں جب اس وقت یہاں ٹاؤن شپ پہنچا تو ہر دکان کا جو تاجر تھا انہوں نے اپنے احتجاج سے پہلے یہ کہا کہ ہمارے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، امپورٹ پہ پابندی ہے، کاروبار چل نہیں رہے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کا اپنا گزارا مشکل ہے۔ اوپر سے یہ بجلی کے بلوں نے جو ہے ان کی زندگی عجیرن کر دی ہے۔ وہ اس وقت مظاہرہ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ ابھی میں نے دیکھا کہ کافی تاجروں نے اپنے بل بھی جلائے اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جو ہماری تحریک ہے وہ اس میں شدت آ جائے گی۔ آج ہم ٹوکن کے طور پہ حکومت کو یہ باور کرانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح جو ہے یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اس کو بند کرے، اس کو روکے۔ اب اگر نہ تاجر جو ہے وہ اس وقت شدید پریشانی اور مشکل کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہمارے گاہک کے طور پہ بھی آ رہے ہیں وہ شدید پریشانی اور ہماری سیل وہ یہ رونا رو رہے ہیں کہ ان سے بجلی کے بل نہیں ادا کیے جا رہے۔ اس سلسلے میں مختلف تاجر جو تھے اور جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے روک کے یہ کہا کہ آپ یہ ہے میڈیا کا کام ہے کہ وہ عوام کی آواز کو جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائے۔ ان کا خیال تھا کہ جی چونکہ جو حکومتی سطح پہ، بیوروکریسی کی سطح پہ بہت زیادہ جو اخراجات ہے وہ تو کنٹرول کیے نہیں جا رہے، تاہم پاکستان کی عوام کو بجلی، گیس، پانی اور دیگر مہنگائی کی صورت میں بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ بوجھ جو ہے وہ اب ان کے برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ جی، یہ بوجھ ان کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور عوام براہ راست معین کے سامنے بل کو جلا بھی رہے تھے۔ یہ شہر لاہور کی صورتحال تھی۔ اب شہر قائد کی صورتحال جانتے ہیں راشد صدیق سے۔ راشد، بتائیے گا کتنی تعداد میں لوگ سراپا احتجاج ہیں، جذبات کیا ہیں، ان کے تاثرات کیا ہیں؟ شکریہ۔ مہنگائی اور بجلی کے بلوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے لوگ سب سے پہلے اٹھے، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ کراچی سے کوئی بھی تحریک چلی ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوئی ہے۔ بجلی کے جو بے تحاشا بل اور جس میں ٹیکسز سب سے زیادہ ہیں اس کے خلاف بھی جو ہے وہ سب سے پہلا قدم کراچی کے تاجروں نے اٹھایا تھا، اور اب یہ آواز جو ہے وہ پاکستان کے تمام بڑے شہر اور گاؤں تک پہنچ چکی ہے، اور تمام لوگ جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے ستائے ہوئے سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ آج بھی کراچی میں 3 مقامات پر جو ہے وہ بڑے احتجاج
एहतजाज हुए। निश्ता रोड पर जो कि टिम्बर मार्केट से मुंसलिक इलाका है, वहाँ पर बड़ा एहतजाज किया गया। PIB में इलाका वहाँ पर एहतजाज किया, साथ साथ लियाकताबाद में एहतजाज किया गया। जबकि कल भी जो है वो कराची की जो मुख्तलिफ मार्केट से वहाँ पर एहतजाज का प्लान मुरतब किया गया है ताजिरों की जानिब से। मौजूदा रवा माह यानी कि जो कि बिजली के बिल आए हैं, उसने कराची का पोश इलाका हो, सनतकार हो, बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो या एक दिहाड़ी पेशा शख्स, सबकी जो है वो चीखें निकाल दी हैं। सबके बिल, किसी का जो 4,000 का बिल आता था वो इस बार जो है वो तकरीबन 24,000 का आया, और जिसका 24,000 का आता था उसका 50,000, और 50,000 वाले का लाख और उससे जायद का बिल आया है। तो यकीनन इस बिजली के बिलों की वजह से जो कराची का डिफेंस में रहने वाला हो, क्लिफ्टन में रहने वाला हो, चाहे वो जितना मर्जी कमा रहा हो, वो परेशान है इन बिजली के बिलों में। मोइन अजहर और राशिद सदीक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि रावलपिंडी के ताजरों ने मंगल के रोज जो है वो एहतजाज किया। लेकिन अभी बात हम कराची की ही करेंगे, जहां पे भारी भरकम बिलों और तवील लोड शेडिंग से परेशान शहरी सरापा एहतजाज बन चुके हैं। मार्टिन क्वार्टर्स के मकीनों की जानिब से के इलेक्ट्रिक और हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। जी हाँ, इससे पहले के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन की काफी धुलाई भी की गई है। हमीद सोमरो, अब बताइए क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी, पूरे मुल्क की तरह कराची के शहरी भी बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से बेजार हो चुके हैं और इस वक्त गली मोहल्लों में भी एहतजाज शुरू हो चुके हैं। न सिर्फ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है, बल्कि जो अवामी हलके हैं वो भी इस वक्त काफ़ी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। हम इस वक्त मार्टन रोड, जेल रोड मार्टन क्वार्टर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न सिर्फ छोटे बच्चे बल्कि जो बड़े हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं और इनका मुतालबा है कि जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते और इनके बिल जो हैं वो कम किए जाएं, क्योंकि इन बिलों के होते हुए न सिर्फ वो जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने से कासिर हैं। बहुत शुक्रिया हमीद सोमरा, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी के ताजरों ने मंगल को पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया है और ये कहते हैं कि बिजली के मौजूदा रेट्स पर कारोबार नहीं कर सकते। मुख्तलिफ इदारों को 34 करोड़ रुपए के बिल अदा कर रहे हैं। लोग दुकानें, फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हो चुके हैं। कारोबारी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दुकानों की चाबियां हुकूमत के हवाले करने का सोच रहे हैं। मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। पेट्रोल जिनको जा रहा है उसको खत्म करें। तमाम पाकिस्तानी हैं, अगर कुर्बानी देनी है तो उस कुर्बानी में पूरे पाकिस्तान को शामिल होना चाहिए। उसमें ये तमीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो वापडा के मुलाजमीन हैं या दूसरे महकमों में काम करने वाले हैं वो तो मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हो और जो बिल नहीं दे रहे उनका लाइन लॉसेस हैं, उनका भी खमियाजा जो है वो आम आदमी और बिजनेस कम्युनिटी बर्दाश्त कर रही हो। हम इस वक्त एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हुए हैं कि जहां पे हमें आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा। दुकानें बंद होने के ऊपर पहुंच चुकी हुई हैं, फैक्ट्रियां बंद होने के ऊपर पहुंच चुकी हैं, बिजली के बिल लोग पे नहीं कर पा रहे, लोगों के पास इतने कैश नहीं है। मेरे पास बिजली के बिल आ गए और लोग कह रहे हैं हम नहीं पे कर पा रहे थे कैश। इन तमाम के ऊपर एक एहतजाज की हमने कॉल दी है। इंशाल्लाह मंगल को हम एहतजाज करेंगे। पिंडी की तमाम ताजा तंजीमें हमारे साथ शामिल हैं इसमें। अब आपको लिए चलेंगे पेशावर, जहां बिजली के भारी भरकम बिल्स ने सार्फिन के सर चकरा दिए। बिल ज्यादा आने के बाद शहरियों और ताजरों का पारा हाई हो चुका है। बिल्कुल, मुख्तलिफ मकामात पर रोड्स बंद करके बिजली के बिल जला दिए गए हैं। एहतजाज के दौरान शहरियों का क्या मुतालबा था, ये बताएंगे सैफ शेरानी। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद सारिफीन भी सख्त परेशान हो गए। बारी बार बिल आने पर शहरियों का मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। शहरियों ने गंज चौक पर एहतजाज के दौरान हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए बिजली के बिल भी जला दिए। हुक्मरानों को ये कहना चाहता हूँ, ये वो श्रीलंका वाले हालात ना बन जाए। खुदा के लिए इस कौम पे रहम करिए। कौम को रिलीफ नहीं दिया तो अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि कौम जो है वो हुकूमत वक्त के खिलाफ मुकम्मल एक आवाज होकर निकल आएगी। बिलों में इजाफे के खिलाफ दूसरा एहतजाज तंजीम ताजरान की जानिब से मिलाद चौक के करीब किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली बिलों में इजाफा और टैक्सेस ने हमारी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बिजली बिलों को अदा करने के लिए घरेलू सामान बेचने पर मजबूर हैं।
मेरी 25,000 रुपये सैलरी है और मैं 35,000 रुपये का बिल कहाँ से दूंगा? यकीनन मैं अपने घर की कोई चीज़ बेचूंगा। मेरा एक बच्चा माजूर है, दूसरा एक सेलमैन है, मेरी बीवी हेपेटाइटिस की मरीज है, कहाँ से देंगे हम? यहाँ तक मैंने देखा कि बाज़ जगह पर बाज़ लोगों ने बच्चियों के लिए जहेज जमा किए थे, उनका सामान बेच रहे हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत को धमकी दी कि अगर बिजली बिलों में इजाफा वापस न लिया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। निगरान हुकूमत आते ही हमारा जीना मुहाल कर दिया है। कैमरामैन फैसल इकबाल के साथ सैफ शिरानी, GNN पिशावर। महंगी बिजली के खिलाफ अवाम के एहतजाज का नोटिस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ मुल्क भर में होने वाले एहतजाज और मुजाहिरों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट किया कि अवाम को बिजली के बिलों में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। बिजली के बिलों में इजाफे पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए, जिनमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवाम ने एहतजाजन बिल जलाए और धरना भी। अब इस मामले का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने नोटिस लेते हुए हंगामी इजलास तलब कर लिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि बिजली के भारी बिलों के मामले पर अहम बैठक कल होगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि इजलास में वज़ारत बिजली और तक़सीमकार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी। सारिफीन को बिजली बिलों से मुतालिक ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन PTI से साइफर केस की तहकीकात डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में FIA टीम ने अटक जेल में 1 घंटे तक पूछताछ की। साबिक वज़ीर आज़म के बयान को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। उधर चेयरमैन PTI ने 9 मुकदमात जमानत खारिज करने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 दरख्वास्तें दायर की गई। इस्तदा की कि पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे। तोशाखाना की घड़ी, साइफर को जलसे में दिखाना, 190 मिलियन पाउंड और 9 मई के वाकयात साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ संगीन केसेस हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज़ खटक की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, काबीना इजलास में हमें बंद लिफाफा दिखाकर दस्तखत कराए गए। लगता है आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। एशिया कप के लिए कजाफी स्टेडियम में तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। लाहौर में एशिया कप के 3 मैचेस शेड्यूल हैं। जी हाँ, जो 3, 5 और 6 सितंबर को खेले जाएंगे। मजीद बताएंगे आकिब कुरैशी, जो इस वक्त कजाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद है। कप शुरू होने में जो है सिर्फ 4 रोज़ बाकी हैं और उसकी तैयारियों के लिए लाहौर के कजाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है वो सिक्योरिटी की भरपूर किस्म की तैयारियां की जा रही हैं। खारदार तारे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। रास्तों को जो है वो एक साइड से बंद कर दिया गया है। फिरोजपुर रोड से जो एंट्रेंस है कजाफी स्टेडियम वाली साइड पे, वहाँ पे एक साइड से रास्ता बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरी साइड पर जो है वो बैरियर लगाकर सिर्फ बाइक्स वाले और जो गाड़ियों वाले हैं वो आ जा सकते हैं। मुकम्मल तौर पर अभी रास्ता बंद नहीं किया, चूँकि आज अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है, तीसरा वनडे। जो अफ़गानिस्तान की टीम है वो ये तीसरा वनडे खेल के 28 तारीख को जो है लाहौर में आएगी, जहाँ पर वो 3 सितंबर को जो है लाहौर के कजाफी स्टेडियम में इन एक्शन होगी। उसके बाद श्रीलंकन टीम ने भी आना है, बांग्लादेश की टीम ने भी आना है, तो 3 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। उसकी तैयारियों के लिए जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने का प्लान है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, जबकि जो है वफाकी काबीना की तरफ से भी जो है रेंजर्स और फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। एशिया कप की तैयारियों के लिए जो है वो सिक्योरिटी इदारों और पंजाब हुकूमत और PCB ने मिलकर जो है शायकीन क्रिकेट के लिए आसानी पैदा करने के लिए तैयारियां जो हैं फुल एंड फाइनल कर ली हैं। जी, लाहौर में एक और आलमी क्रिकेट का मेला सजने को तैयार है, मगर पंजाब हुकूमत और PCB के दरमियान तनाज़ा तेज हो गया है। हुकूमत पंजाब ने PCB को 25 करोड़ रुपए अदायगी का नोटिस भिजवा दिया, जबकि PCB भी डट गई है। सिर्फ 10 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। PCB का ये मौक़िफ़ सामने आया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। मोइन अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोइन अज़हर, बताइएगा ये क्या तनाज़ा है? जी, PCB और पंजाब हुकूमत के दरमियान पैसों के ऊपर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है और एशिया कप जो है वो बहुत करीब है। तहम इस तनाज़े के हवाले से जिस वक्त मैंने पंजाब हुकूमत के ज़राए से बात की तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 61 करोड़ रुपया PSL
इंग्लैंड की टीम और न्यूजीलैंड की टीम पे खर्च हुआ था। पीसीबी ने पीएसएल के बाद वादा किया था कि वो जो है 25 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत को अखराजात के लिए अदा करेंगे, तमाम वो पैसे अभी तक अदा नहीं किए गए। होम डिपार्टमेंट से जब मेरी होम डिपार्टमेंट से बात हुई, उन्होंने कहा 3 दफा पीसीबी को लेटर लिखा गया है, उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो हम जब मैंने पीसीबी से बात की, मोइन अजहर, आपने तफसीलन अपडेट किया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जारहाना अंदाज अपनाएगी। लंदन में नून लीग के बड़ों की बैठक हुई जिसमें बड़े फैसले किए गए हैं। जी हाँ, इंतखाबी मुहिम में इदारों की बजाय अहम शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। सियासी और मुआशी अबतरी की जिम्मेदारी पैनमा JIT साबिक चेयरमैन नैब पर आयद की जाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों के पस पर्दा मुहर्रिकात सामने लाएंगे। मुस्लिम लीग नून के लंदन में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में इंतखाबी मुहिम चलाने के हवाले से हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा है कि अब हुकूमत करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो ये हिकमत अमली बनाए कि इंतखाबी मुहिम में अवाम के पास क्या लेकर जाएं। नवाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि क्या अवाम हमारा बयानिया कबूल करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को महंगाई, बेरोजगारी समेत दीगर मसाइल से कैसे निजात दिलवाएं, अवाम को इस भंवर से कैसे निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये सब किया धरा तहरीक इंसाफ का है, हम तो 16 माह में इनका गन साफ कर रहे थे। पार्टी ज़राए ने बताया है कि मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम में बड़ी अहम शख्सियात की खुफिया ऑडियोस भी अवाम के सामने लाएंगी। माशी और सियासी अबतरी की जिम्मेदारी पनामा केस के किरदारों पर आयद की जाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज साजिश के पसे पर्दा मुहर्रिकात को सामने लाएंगे। किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। राय के मुताबिक नवाज शरीफ तमाम अमूर पर जमात की वाज़ेह हिकमत अमली के लिए सीनियर रहनुमाओं से भी मुशावरत करेंगे। कई रहनुमा लंदन जाएंगे जबकि कई से ऑडियो लिंक पर मुशावरत होगी। सेनेटर ताज हैदर ने मुल्क के तमाम आबादी वाले ब्लॉक्स की आबादी और घरेलू अदादो शुमार फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा कर दिया है। PPP सेंट्रल इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एहलकारों के जरिए आबादी के अदादो शुमार में हेरा फेरी करके मुनज़्ज़म अंदाज में प्री पोल धांधली बिला रोक टोक जारी है। प्री पोल धांधली के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी के गढ़ में आबादी के बड़े हिस्से को बिल्कुल भी शुमार नहीं किया गया। दूसरे मरहले में गिनती की तारीखों में इंतखाबी तौर पर तौसी की गई, जिसका वाज़े फ़ायदा उन लोगों को दिया गया जो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकवा। कहा कि 2 दिन से मुझे एक नामुकम्मल बयान की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। मैंने अपने बयान की वजाहत करने की कोशिश भी की है। क्या ये पहली बार है कि पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जा रहे हैं? पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी रहें, मुआशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करते हैं। उनके भेजे ज़र्रे मुबादला से हम फ़ायदा उठाते हैं। अच्छे मौके की तलाश में बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं। Being trolled on Twitter for last 48 hours on one of the comment which was incomplete, which I exactly tried to explain this phenomena. First of all, for me, the people who choose to remain either in the United States of America or in Europe or in Australia, anywhere in Western Hemisphere mostly, it's not a challenge. It is an opportunity also at the same time. They go there, they contribute positively to their host societies, they become the bread earners to their families, and indirectly we benefit from their remittances. So I hardly see it in negative terms when the young people are going towards the Western Hemisphere, trying to grab opportunity over there, trying to prove themselves. फैसलाबाद, जंग, विहाड़ी, जहानिया, ओकाड़ा और कसूर समेत कई शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए जबकि बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूटा तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। फैसलाबाद और गर्दोनवा में आज सुबह से बादलों का राज रहा। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मतलब अबर आलूद रहने और मजीद बारिश होने का इम्कान है। कसूर में बारिश के बायस हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। वापटा के मुतद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। उकाड़ा शहर और गर्दोनवा में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चंद मिनट की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया।
پہاڑی، جہانیاں اور حجرہ شاہ مکی میں بھی بادل خوب برسے، تاہم متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے جس سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔